Okay. I'm sharing my screen. Is it? Would you be sharing your screen? No, no, for And all. It's for all. no, I mean you'll be sharing your screen for the presentation because otherwise my student can also do the same if you want. Okay. Yeah, yeah. She can present. Great. Okay. Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon. We have Munya in the audience, our students from BA Honors Psychology, Masters, and PG Diploma. And let me just briefly share that this is an initiative which we have started at GT Goenka University. Um, and this initiative is called as Connect for Psychological Support. So, as the Department of Psychology in GTGU SOHSS, we have two numbers currently actively running for people who would like to contact us and share their concerns. This started on 11th of May, and in the past 4 days, I would be glad to share this that we have received few calls from people sharing the anxiety, from people sharing their worries amidst the COVID situation. We all know this pandemic has been taking a toll on all of us, both in terms of the physical condition as well as the psychological state. So today we are going to thereby try and address the concerns, the psychological concerns, and especially anxiety issues that we tend to face during this condition. So I think let's start the presentation now. So Pragati, can you please Yes, introduce our guest yes, and ma'am. can we have the presentation, please? Am I audible to you, ma'am? Yes, yes. Okay, ma'am. So, good afternoon, everyone. I, Pragati Duggal, would like to welcome you all on behalf of the Psychology Department. As you all know, we have started this initiative of Connect for Psychological Support, which is our way to connect to people. We are just hearing out people like a buddy. You can share with us whatever you want to, whatever you're going through. So today we have amongst us Miss Munia Bhattacharya. She's Hello, currently everybody. she's currently working at W. Pratiksha Hospital, Gurgaon as a senior consultant psychologist. She's an advanced master practitioner of cognitive hypnotic psychotherapy, licensed master practitioner of neuro linguistic programming, counseling psychologist, psychotherapist, and child behavior therapist. She also specializes in stress management, treatment of depression, anxiety and phobias, obsessions, psychosis, and other emotional cognitive behavioral issues. A very warm welcome to you, ma'am. And I would now like to request you to please address all of us. Hello. Yes, ma'am. Would you share the PPT? Yes, Or ma'am. Please. yeah. Okay. Next screen. Yeah. So today we will talk about the anxiety or how to overcome the anxiety. So first of all, I want to say you that if you are feeling that I am anxious, so don't worry. It's good because little bit anxious anxiety is very necessary. Like अगर हम लोग anxious होंगे ही नहीं तो हम लोग precaution पे focus ही नहीं करेंगे. Like हमारे mask पहनना, minimum distance रखना, या क्राउड में नहीं जाना, हैंड सैनिटाइज करना. हम लोग देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं कोविड कुछ नहीं है या कुछ नहीं होगा, हमें क्या होने वाला है, और उन्हीं को सबसे पहले हो जाता है बिकॉज उनके अंदर एंजाइटी नहीं रहती है, वो बहुत इजी लेते हैं चीज़ों को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट एंजाइटी इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स, ताकि हमें वो नहीं आए, हम लोग उसे इनवाइट नहीं करें. नेक्स्ट.
And second thing, to minimize your anxiety or stress, first of all, you have to find out what is my stressors, what is my the reason of anxiety. सपोज कभी कभी लगता है कि मुझे स्कूल के फीस जमा करने को लेकर एंजाइटी हो रही है, या मेरी सैलरी कट हो गई है जिसके कारण मुझे एंजाइटी हो रही है, या घर में, वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड सिचुएशन, घर में वर्क फ्रॉम होम है, मेड नहीं है, हस्बैंड वाइफ में वो लड़ाइयाँ चल रही है, फाइटिंग हो रहा है कि किसको ज़्यादा काम करना है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम है तो मुझे, मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, तुम बाकी काम संभालो. तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि स्ट्रेस या एंजाइटी किस चीज़ को लेकर हो रही है. देन वी विल वर्क ऑन दिस. उस पर मैं आगे आऊँगी, पहले मैं बेसिक चीज़ों पे फोकस कर लेती हूँ. नेक्स्ट, so first of all we have to consider what you can control and work on that. कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को वो हमारे कंट्रोल में चीज़ें है ही नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग एंशियस हो जाते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि मैं ये ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये ठीक नहीं कर पा रही हूँ, ये कब ठीक होगा. तो हम लोग जो ठीक कर पाएंगे, जो हमारे कंट्रोल में है, उसे ही हम फोकस करेंगे. आपके पास, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास एक डब्बा है, बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी है और हमें टास्क दिया गया है कि एक बॉक्स है, उसमें तुम्हें बहुत सारे स्टफ रखने हैं और हम एंशियस हो रहे हैं कि हाँ हमें ये स्टफ रखने हैं और लीड उसकी बंद करनी है, पर हम बंद कर ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो बॉक्स बहुत छोटा है, स्टफ बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टफ बहुत है. तो हम लोग पहले फोकस करेंगे कि कौन कौन सी हमारी प्रायोरिटी है, किस किस चीज़ को हम अंदर बॉक्स में रख सकते हैं और किसको नहीं रखेंगे तो चलेगा. तो हमें फर्स्ट अपने फिनेंस के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें फोकस करना होगा कि बॉक्स में क्या रखना है, किसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते. नेक्स्ट, फोकस ऑन योर हॉबी. चाइल्डहुड पीरियड से लेकर अब तक हम लोग बहुत हॉबी पे, कभी कभी होता है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था या हमारे पास टाइम नहीं होता था, तो हम लोग अपनी हॉबी को फोकस नहीं कर पाए. तो दिस इज गुड टाइम दैट यू कैन फोकस ऑन योर हॉबी. गार्डनिंग करना, किसी को घूमने जाने का बहुत शौक है और इस कोविड के में वो घूमने नहीं जा पा रहे, तो हमें वर्चुअली फील करना होगा कि वी आर गोइंग. हमें एवरी डे 45 मिनट्स अपने हॉबी पे फोकस करना होगा कि हाँ हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं. अगर पेट्स अच्छे लगते हैं तो पेट्स पे फोकस कीजिए. गाना सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुनिए, या गाना अच्छा लगता है तो गाइए. पेंटिंग, डांसिंग, जो भी आपकी हॉबी हो, हमें वो हॉबी पे फोकस करना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, मॉर्निंग टू नाइट हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल को रीच करने के लिए भागते हैं. एवरी टाइम हमारे गोल को रीच कराने के लिए हमारे थॉट्स डोमिनेटिंग स्टिक लेके हमारे पीछे खड़े रहते हैं कि हाँ तुम्हें ये गोल रीच करना है, और हम लोग हमेशा स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं. लेकिन अगर हम लोग हॉबी के टाइम बैठेंगे तो हॉबी सिर्फ और सिर्फ हमारा लिसनर होगा और हमारे पीछे कोई स्टिक लेके खड़ा नहीं होगा, और हम लोग सिर्फ बोलेंगे, हमारी हॉबी सुनेगी, जिससे हमारी एंजाइटी वेंट आउट होती है. तो हमें हॉबी पे एवरी डे 45 मिनट्स फोकस करना होगा. कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनको जब मैं बोलती हूँ कि हॉबी पे फोकस करना है, तो वो मुझे बताते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है हॉबी पे फोकस करने के लिए, मॉर्निंग टू नाइट मैं फ्री होता हूँ या फ्री होती हूँ. ऐसा नहीं है, हम लोग चाहे तो 45 मिनट्स ज़रूर निकाल सकते हैं अपनी हॉबी के लिए, मी टाइम के लिए, तो वो आप ज़रूर निकालिए. नेक्स्ट, गेट अ गुड नाइट स्लीप. अभी हर घर में देखा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम है, जिसके कारण सभी लोग, बच्चे बड़े, सब एकदम आइडियली बैठ के मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं. उनके लिए ये सारी चीज़ें कि हाँ कल उठ के मुझे फटाफट जाना है, ऑफिस जाना है, वो टेंशन, वो एंजाइटी नहीं है, इसलिए वो ईजीली लेट नाइट तक मूवी देख रहे हैं.
जो एंजाइटी प्रोन है उनके लिए मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर स्लीप लेना ही पड़ेगा, वो प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं 3 बजे तक मूवी देखती रही और सुबह फिर ऑफिस ज्वाइन की और फिर उसके बाद पूरे दिन ड्राउजी हो रही हूँ। हमारा स्लीप प्रॉपर नहीं होता है तो हमारे ब्रेन के जो नर्व्स हैं उन्हें वो केमिकल्स नहीं मिलते और हमारे नर्व सूखने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी एंजाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स आने लगते हैं। तो स्लीप प्रॉपरली कीजिए। अगर लग रहा है कि हाँ नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पास इतना भागा दौड़ी वाला वर्क अभी नहीं है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सुबह उठ के जाना है, काम करना है, वो सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो गई है, तो हमारा माइंड थकता बहुत कम है फिजिकली। तो उसके लिए अगर बैठे बैठे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पे चाय पी रहे हैं, तो वो हमारे स्लीप लेवल को बहुत कम कर देता है, जिसके कारण हमें स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या इंसोम्निया है या जिसको नींद नहीं आ रही है, वो प्लीज़ शाम के टाइम के बाद से कॉफ़ी या चाय या कैफीन रिलेटेड कुछ भी कम कर दें। और जो अल्कोहल कंज्यूम करने लगे इस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूसरे दिन रहता है ना कि हैंगओवर हो जाएगा, ऑफिस कैसे जाऊंगा, सुबह नहीं उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगी, उनके लिए ये स्ट्रेस अभी चला गया है। अब तो उन लोग रात तक वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग ये कंज्यूम करना, अल्कोहल कंज्यूम करना कम कीजिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो डिप्रेसेंट। हमें लगता है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं और उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं हम लोग उस टाइम राइट रॉन्ग के जजमेंट करना भूल जाते हैं, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, उस समय हम लोग यूफोरिक स्टेज में चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत रिलैक्स हैं। पर वो जब हमारी वो प्रॉब्लम खत्म होती है, जब हमारा नशा खत्म होता है, तो मॉर्निंग में वो स्ट्रेस लेवल एक और बढ़ जाता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो डिप्रेसेंट। तो हम लोग लेवल 1 एंजाइटी अपनी बढ़ा लेते हैं। अगेन दूसरे दिन जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उस समय हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और सेकेंड डे फिर से अगेन लेवल 2 पे चले जाते हैं। हम लोग मूवी में तो देखे ही होंगे कि जैसे हीरो को हीरोइन को प्रपोज करना है, तो हीरो कर नहीं पा रहा है, डर रहा है, उस समय क्या करते हैं हीरो, बहुत अच्छे से ड्रिंक करके अपने गर्लफ्रेंड के घर के नीचे जाके चिल्ला चिल्ला के प्रपोज करते हैं, क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं और राइट रॉन्ग की जजमेंट नहीं रहती है, इसलिए वो ये काम करने की हिम्मत ले पाते हैं। बट दूसरे दिन अगेन जाके सॉरी बोलते हैं, बिकॉज फिर वो राइट रॉन्ग समझ पा रहे हैं। तो ड्रिंक इज ए डिप्रेसेंट, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और फील कराता है कि मैं यूफोरिया स्टेज में हूँ। तो हमें ये भी अवॉइड करना होगा। कभी कभी होता है कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के बाद भी स्लीप पैटर्न हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग ढूंढेंगे, देखेंगे कि क्या करने से मुझे थोड़ा बहुत नींद आता है। माइंड को थोड़ा थकाना पड़ेगा, रीडिंग, बुक रीड करके या स्लो म्यूजिक सुन के। अगर हम लोग, आप लोग पूछ सकते हैं कि स्लो म्यूजिक सुनने से कैसे हमारा माइंड थकेगा। जब हम लोग स्लो म्यूजिक सुनते हैं तो हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक एक लाइन पे या म्यूजिक पे या ट्यूनिंग पे, तो हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेशन के कारण धीरे धीरे थकने लग जाता है और उसके बाद धीरे धीरे नींद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हमें नींद आएगी। नेक्स्ट, कीप अ रूटीन, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ है कि हमारे पास कोई हरीनेस नहीं है, रात तक हम लोग मूवी देख रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह उठ के मुझे बरमूडा में ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे अपने घर के ड्रेस में ऑफिस ज्वाइन करना है, बच्चे को कैमरा ऑफ करके स्कूल ज्वाइन करना है। जो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, उनके पास भी वो हरीनेस नहीं है कि हाँ ठीक है, जैसे भी मैं उठी अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, वैसे ही कैमरा ऑफ रहेगा, वो ब्रेकफास्ट करते करते मीटिंग ज्वाइन करेंगे या अपना काम करेंगे। इसे हमें अवॉइड करना होगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, एक डायलॉग देते हैं कि मेरे पास टेंशन लेने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ये ही सिर्फ नहीं है मेरे पास टेंशन लेने को। इसका मतलब कि हम लोग अभी सारी चीज़ें छोड़कर अभी कोविड पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ है ही नहीं। उठकर जल्दी जल्दी मुझे ऑफिस जाना है, टाइम से पंच करना है, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी,
नहाना है, टाइम से उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, होमवर्क मेकर को ब्रेकफास्ट बना के देना है, वो सारी चीजें खत्म हो गई है। तो वो हमारी जो बटी रहती थी एंजाइटी या थॉट प्रोसेस जो डिवाइड रहते थे, वो सब कुछ खत्म होके अभी हमारे सिर्फ कोविड पे आ गए, न्यूज सुनने पे आ गए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करें और कैमरा ऑन करके ऑफिस ज्वाइन करें, कैमरा ऑन करके स्कूल ज्वाइन करें, क्योंकि कैमरा ऑफ रहेगा तो हमारे अंदर वो रूटीन, वो डिसिप्लिन रहेगी नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या, एक तो अच्छा मौका मिला था मुझे कैमरा ऑफ करके एंजॉय करके ऑफिस करने का, लेकिन आप करके देखिए, कैमरा ऑन करके रेडी होइए, शर्ट पे प्रॉपर, सूट पे प्रॉपर, फॉर्मल ड्रेस पे या स्कूल यूनिफॉर्म में आप बैठिए, आप देखेंगे कि आपकी रियली रूटीन प्रॉपर मेंटेन हो रही है। तो हमारे पास वो एंजाइटी, स्ट्रेस लेने की चीजें बहुत सारी हो जाएंगी, कोविड की तरफ थोड़ा मन कम जाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस एंड माइंडफुलनेस। हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन की बात कर रही हूँ मैं, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि लोग सुन लेते हैं कि हाँ मेडिटेशन करना है, आईज क्लोज करके हैंड को इस पोजीशन में रख के अच्छे से बैठ के मेडिटेशन वाले पोजीशन में हम लोग 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि मेरे थॉट्स डाइवर्ट हो रहे थे, मैं कभी हस्बैंड ने ये किया कि नहीं, मुझे उसने बहुत नेगेटिव बोला था, वो सारे थॉट्स पे चले जाते हैं। पर आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना हो। मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि अगर मैं मेडिटेशन करते टाइम नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसे कैसे रोकूं, तो आप टाइम स्पैन को फॉलो कीजिए कि कितनी देर मैं प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पॉजिटिव थॉट्स के साथ मेडिटेशन कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। अगर 2 मिनट्स आप कर पा रहे हैं तो 2 मिनट्स के टाइम स्पैन पे आप मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद उसी में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या 1 वीक के बाद उस टाइम स्पैन को अगर आप बढ़ा सकते हैं तो 3 मिनट्स, देन 4 मिनट्स। बट अगर मेडिटेशन करना है तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, बिकॉज हम लोग ड्यूरिंग मेडिटेशन हमारा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम कनेक्ट होते हैं और उस समय आप नेगेटिव थॉट्स लेंगे तो माइंड आपको बोलेगा ओके, मैं यही थॉट्स आपको देता रहूंगा, क्योंकि हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह होता है। गूगल में हम लोग जो कुछ भी सर्च करते हैं ना, उसके बाद आप देखेंगे बार बार वही चीजें पॉपअप कराती है आपको, कि तुम, वो समझ जाता है गूगल कि आपके सर्च पैटर्न ये है। ठीक उसी तरह से माइंड भी समझ जाएगा कि आपकी एंजाइटी पैटर्न ये है, आप इस पर्सनालिटी के हैं, और आपको इमीडिएट उस टाइप के थॉट पूरे दिन देता रहेगा। तो हम लोग जितनी देर, 2 मिनट्स हो या 1 मिनट्स हो, वो स्पैन फॉलो करके पॉजिटिव थॉट्स लेंगे। उसके बाद अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, हम 2 मिनट्स, 1 मिनट्स भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करेंगे। वो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो नोज के थ्रू ब्रीद इन करना है, 4 सेकेंड तक उसे ब्रीद इन करते रहना है, और आईज क्लोज करके आपको फील करना है कि आप एनवायरमेंट से पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिविटी, कंफर्टनेस, रिलैक्सेशन को अपने माइंड में, ये मैं प्रैक्टिकली अभी आप लोगों को लास्ट में करके दिखाऊंगी। तो आप वो ब्रीद इन कर रहे हैं, और उस, कभी कभी हम लोग होता है ना कि विजुअल किसी की पावर स्टिमुली बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो बहुत अच्छे से उसे फॉलो कर पाता है। हम लोग स्कूल लाइफ में बोलते थे ना, मैडम आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, मैम आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी सरकास्टिक वे में टीचर बोलते थे मेरा चेहरा देख के क्या करोगे। बट कभी कभी जिसकी विजुअल पावर स्ट्रांग होती है, उसके लिए वो विजुअल करके वो ज़्यादा दिमाग में घुसता है। तो उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आप आईज क्लोज करके एक कलर दे देंगे एनवायरमेंट की पॉजिटिविटी को, कंफर्टनेस को, रिलैक्सेशन को, एक कलर इमेजिन करके फील कीजिए कि आप अपने नोज के थ्रू से ब्रीद इन कर रहे हैं, और उसे 7 सेकेंड होल्ड करना है और फील करना है कि वो आपके पूरे माइंड में, बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल्स में, नर्व्स में स्प्रेड हो रहा है। वो हर एक पॉजिटिविटी, कंफर्टनेस, रिलैक्सेशन, ये 7 सेकेंड तक उसे फील करना है, पूरी बॉडी में स्प्रेड करना है। और उसके बाद 8 सेकेंड तक ब्रीद आउट करना है माउथ के थ्रू, हुश साउंड करके, जिसमें
आपके थॉट्स होंगे कि आपने अपने पूरे माइंड के, बॉडी के नेगेटिविटी को, इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को, एंजाइटी को ब्रीद आउट कर रहे हैं थ्रू माउथ, और उस नेगेटिविटी को भी एक कलर देना होगा, उस एंजाइटी को, स्ट्रेस को भी एक कलर देना होगा, और यू आर फीलिंग दैट मैं वो सारी चीजें बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, और ये आपको 4 टाइम्स एवरी डे करना होगा। नेक्स्ट, एंजॉय योर सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो घर में, पहले भी घर में ही रहते थे, ऑफिस करके आके भी घर में रहते थे, या किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता था। मैं कल एक सीरियल देख रही थी, उसमें दिखा रहा था कि कोई एक और हाउसवाइफ को बोल रहे हैं कि चलो हम लोग किटी ज्वाइन करते हैं, तो वो बोली नहीं बाबा, मुझे ये सब किटी विटी नहीं पसंद है, मुझे घर में रहना ही अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ बातें करना, गॉसिप करना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे घर में ही रहना है। तो वो एक पर्सनालिटी है जिसको पसंद ही नहीं है शुरू से ही कि मैं 10 लोगों से बात करूं, मेरे मुंह से कुछ गलत निकले या गॉसिप बने, वो घर में रह के एंजॉय करते हैं। बट उनका क्या, जो ये गॉसिप करके एंजॉय करते हैं, किटी करके एंजॉय करते हैं, लोगों से बातें करके एंजॉय करते हैं, उनके लिए ये लॉकडाउन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम वो सेम चीज करेंगे जो ऐसे भी करते थे, बट हमारे जूम लिंक के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू जो अभी हो रहा है। ये लॉकडाउन हमारे वेबिनार को बंद नहीं कर पाया है, हम लोग स्टिल कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ स्टिल कांटेक्ट में हैं। तो ये कांटेक्ट बंद नहीं करना है कि लॉकडाउन में हम आ गए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बातें करते हैं, उनको बोलिए कि हम लोग जिस टाइम बातें करते थे उस टाइम ही बातें करेंगे, और इस मीडिया के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग, वी आर सोशल एनिमल। हम लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बातें करना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अकेले रहना। अभी मैं स्टेटस देख रही थी व्हाट्सएप में, मेरे हॉस्पिटल के ही किसी ने लिखा था कि ये लॉकडाउन खत्म करो, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है। पर वो जिसने ये स्टेटस डाला है वो ये नहीं देख रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने से चेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से कोविड के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। उसका फोकस है कि मुझे लोगों से मिलना है, उसके लिए ये मिलना, एंजॉय करना कितना जरूरी हो जाता है। तो हम करेंगे, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम करेंगे, अभी वर्चुअल करेंगे, कुछ महीनों की बात है, थोड़े दिन बाद हम लोग अगेन ज्वाइन कर लेंगे फिजिकली। तो हमें एंजॉय करना रोकना नहीं है, बट अपने मीडिया के थ्रू, किसी भी जूम लिंक हो या गूगल मीट हो या किसी भी व्हाट्सएप हो, किसी भी के थ्रू। नेक्स्ट, अवॉइड कंज्यूमिंग टू मच न्यूज़। मैं ना न्यूज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती, मुझे मतलब बहुत बोरिंग लगता है न्यूज़ में, बट थोड़ा बहुत देखना पड़ता है क्योंकि अपडेट नहीं रहूँगी तो भी वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं न्यूज़ बहुत कम देखती थी, और अगर सबके साथ बैठती थी तो ये पॉलिटिकल चीज़ें, उनमें मैं चुप ही रहती थी क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है, कुछ मैं बता ही नहीं सकती, तो मैं चुप रहती थी। पर अपने आप को मैं समझाती भी थी कि थोड़ा बहुत ज्ञान रखना ज़रूरी है पॉलिटिकल। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही थी न्यूज़ देखना, और मुझे एक्चुअल में एंजाइटी होने लग गया कि क्या होगा, बेड नहीं मिल रहे, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या होगा। तो मैं स्टॉप कर दी न्यूज़ देखना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना न्यूज़ देखकर। न्यूज़ देखूंगी, बेड तो जुगाड़ करके नहीं दे पाऊंगी, और एंजाइटी होगी। तो ये बहुत बहुत इजी चीज़ है कि आप उस रियलिटी से थोड़ा सा मुंह मोड़ लें जिससे आपको एंजाइटी होती है। मैं इस पिक्चर में बता रही हूँ कि इस बेबी को हेयर कटिंग से डर लग रहा है, तो वो अपनी आईज क्लोज कर ली है, बिकॉज आईज क्लोज करके वो रियलिटी से मुंह मोड़ ले रही है कि उसको चोट लग सकती है सीजर से। तो यहाँ हमें यही करना होगा, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, कि हम लोग कुछ नेगेटिव देखते ही ये रिएक्शन देते हैं, बिकॉज हम अपना कान आंख बंद रखना चाहते हैं जो हमें एंजाइटी देता है। ये हम लोग बहुत बचपन से करते आए हैं, उसे अभी भी फॉलो करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल पीजियन का हम लोग देखते होंगे कि पीजियन जब हंटर के सामने बैठती है तो अपनी आईज क्लोज कर लेती है, क्योंकि वो रियलिटीज को देखना नहीं चाहती है कि वो अब मरने वाली है। तो हमें, वी आर सोशल एनिमल बट वी आर नॉट, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग
उस हंटर के सामने ही नहीं जाएंगे जहां हमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड अपने न्यूज़ चैनल से जितना मिनिमम हो सके उसे फोकस करेंगे। अननेसेसरी देखना कि कितने केसेस आज बढ़े, कितने डेथ रेट बढ़े, वो अननेसेसरी देखकर हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी को बढ़ा पाएंगे, तो उसे अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। जैसे मैं फर्स्ट उसमें ही बोल रही थी कि लिटिल बिट, फर्स्ट स्लाइड में मेरा था कि लिटिल बिट एंजाइटी इज वेरी नेसेसरी। अगर वो एंजाइटी नहीं होगी और जिसके स्टेटस की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइप के लोग जो घर में रह के परेशान फील कर रहे हैं, वो जाएंगे ही बाहर चीज़ें खरीदने, मार्केट में घूमने, क्योंकि वो उनको प्लेजर देता है। और वहां से फिर कोविड होता है, उसके बाद घर के लोगों को होता है, फिर वो परेशान होते हैं। तो उन सारी नेगेटिव चीज़ों के बाद रिग्रेट करने से पहले अपने आप को समझाना होगा कि फ्यू मंथ्स की बात है, हम लोग थोड़े दिन बाद अगेन मार्केट में जाएंगे। अभी ऑनलाइन जितना हो सके, फ्री होम डिलीवरी जितना हो सके, उस सर्विस को हम लोग लेंगे। नेक्स्ट, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिव पॉजिटिव कमांड टू योर माइंड। हम लोग शुरू से ही सुन चुके हैं, जब ये कोविड आया था इंडिया में, तो हम लोग सुन चुके थे कि ये डेडली डिजीज है, इससे कुछ भी हो सकता है, या एक दो केसेस हम लोग जब सुन रहे थे कि इसकी डेथ हो गई है, तो वो हमारा माइंड उसे एज अ कमांड ले लिया। एज अ कमांड मैं आपको बता रही हूँ क्या है। हमारे पूरे माइंड का 93% माइंड वर्क करता है सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ओनली 7% माइंड वर्क करता है कॉन्शियस। तो जो कुछ भी हम लोग एनवायरमेंट से सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं या बोलते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस माइंड करती है। अनकॉन्शियस माइंड का आप लोगों को रोल बता रही हूँ। सपोज रात को हम लोग अलार्म सेट करके सो रहे हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद हमारा माइंड डीप स्लीप में चला जा रहा है, स्नोर कर रहा है, ड्रीम देख रहा है, वॉटेवर, पर सुबह 5 बजे अलार्म बजे या ना बजे हमारी आंखें खुल जाती है। वो कौन खोलता है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमने उसे कमांड किया था दैट आई नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिमिलरली कभी कभी एक और, आप लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं मैं तो नहीं उठ पाती हूँ, फिर भी अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, क्योंकि आपने एक और कमांड कर दिया है कि उफ, फिर से मुझे 5 बजे उठना है, या फिर से मुझे इतना अर्ली सुबह उठना है। तो माइंड उसे एज अ कमांड, डोमिनेटिंग कमांड ले रहा है, और उस 5 बजे आपको नहीं जगा रहा है, 5 बजे की जगह 5:30 और 6 और एनी अदर टाइम में जगा रहा है, बिकॉज आपका डोमिनेटिंग कमांड था कि वो फिर से मुझे उठना है। माइंड समझ जाता है कि आपको उठना नहीं है, और माइंड हमारा बहुत नॉटी होता है, वो सबसे पहले हमारे नेगेटिव कमांड को ही अच्छे से लेता है, खुशी खुशी लेता है। वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता है कि हाँ 5:30 उठने से आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है, आपके एग्जाम खराब हो सकते हैं, आप मीटिंग के लिए लेट ज्वाइन कर सकते हैं। माइंड वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फोकस ही नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग कमांड को फॉलो करता है। सिमिलरली आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, और आप मेट्रो में बैठे हैं, आपको एक पर्टिकुलर स्टेशन में उतरना है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो सोशल मीडिया में लगा है या किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग या चुपचाप भी बैठे हैं तो हमारा थॉट कहीं और है, फोकस कहीं और है। बट जैसे ही वो पर्टिकुलर स्टेशन आएगा, एक स्टेशन पहले या एक स्टेशन बाद में या उसी स्टेशन में, आपकी अवेयरनेस आ जाएगी कि अरे मुझे यहाँ उतरना है। वो कौन करता है? हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसे हमने कमांड किया था। तो हमारा ये अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो सोते हुए इंसान को टाइम से जगा देगा। डिस्टेंस परसेप्शन, टाइम परसेप्शन उसके पास होता है, किस स्टेशन में उतरना है हमें अवेयर करा देगा। तो ये इतना पावरफुल होता है कि हमारे सारे कमांड को स्टोर करके जो हुक्म मेरे आका बोलता है। तो इनिशियल डे में जब हम लोग सुने थे कि डेडली डिजीज है, इससे लोग मर सकते हैं, तो वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसे लिया और बोला जो हुक्म मेरे आका, और वो पैनिक हमारा क्रिएट करता गया, और उसके कारण हमारा माइंड उसे लिया, हमारी बॉडी में वो सेम इंफॉर्मेशन भेजा, और हम लोग फील करने लग जाते हैं कि मेरी हार्ट बीट कम हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। माइंड उसे ले रहा है जो हुक्म मेरे आका बोल रहे हैं, और बॉडी में वो सिग्नल भेज रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में फील करने लग जाते हैं कि यस मुझे ये हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत तेज भूख लगी है
और सुन रहे हैं कि हाँ अभी बहुत फेवरेट खाना बनने वाला है, हमें वो स्मेल आने लग जाता है या भूख और तेजी से बढ़ जाती है, बिकॉज हमारा माइंड वो सिग्नल दे रहा है बॉडी को, बॉडी और तेज भूख फील करने लग जाती है, वो फ्लेवर फील स्मेल करने लग जाती है। तो सेम उसी तरह से अगर आप अपने माइंड को बता दे रहे हैं कि कोविड होने से आपके सैचुरेशन पॉइंट कम हो जाएंगे, इसका मतलब आपका माइंड वो ले रहा है जो हुक्म मेरे आका बोल रहा है, बॉडी में वो एक्चुअल में फील कराने लग जा रहा है कि यस मेरी ब्रीदिंग कम हो रही है, मेरी पैल्पिटेशन हो रही है, स्लो ब्रीथ कर रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, और जब हम लोग ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में दिखने लग जा रहा है। तो हमें अपने आप को कमांड देना होगा कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अभी आपको एक रिलैक्सेशन थेरेपी दूंगी। अगर आप लोगों का सबका माइक म्यूट है तो मुझे नहीं पता कि घर में अंदर कितने शोर हो रहे हैं या कितने डिस्ट्रैक्शन है। अगर जैसे माइक म्यूट करके आप लोग सुन रहे हैं वैसे ये रिलैक्सेशन आप लोग अपना मोबाइल में म्यूट करके मेरा ये रिलैक्सेशन सुनिएगा और उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। रिकॉर्ड करके रात को उसे सुनना है सोने के जस्ट पहले, बिकॉज लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग ही हमारा माइंड अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा वर्क करता है। हम लोग कुछ भी सोचते, जैसे बोलते थे ना पुराने टाइम में कि सोने के टाइम भगवान का नाम लेकर सोना, या उठोगे तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर उठना, क्योंकि हमारे माइंड में जो हम लोग सुनते हैं वो रात को या अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दूंगी और लास्ट में जब मैं चुप हो जाऊंगी तो आपकी जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बोली थी ना कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स, तो वहां से आपको स्ट्रेसर्स, अभी आप 2 मिनट्स आईज क्लोज करके या 1 मिनट आईज क्लोज करके स्ट्रेसर्स फाइंड आउट कीजिए कि आपका स्ट्रेसर्स क्या है, और उस स्ट्रेसर्स को आपको ऑपोजिट सोचना होगा। लाइक अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, कोविड में मुझे कुछ हो ना जाए, तो उसका ऑपोजिट सोचना होगा कि आई एम हेल्दी, मैं बहुत हेल्दी हूँ, अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी आपको हेल्थ को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर जो भी स्ट्रेसर्स है उसका ऑपोजिट आपको सोचना है। जब मैं चुप हो जाऊंगी लास्ट में मेरे एक लाइन होगा कि आप बेड पे लेटे हुए हैं और आप ड्रीम देख रहे हैं या एक्चुअल में आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो आपको उस समय मैं चुप रहूंगी और आपको अपने माइंड को कमांड देना है, जो कि आपका अनकॉन्शियस माइंड सुनेगा और उसे एक्चुअल में कराएगा। इट्स नॉट मैजिक कि बहुत 1-2 दिन में हो जाएगा। यू हैव टू लिसन दिस म्यूजिक एवरी डे टिल 21 डेज, क्योंकि 21 डेज ही लगता है न्यूरो पाथवे के थ्रू पुरानी चीज़ें हटा के न्यू चीज़ देने में। तो मान लीजिए अब हम 1 to 20 डेज सुने और 21 डेज वाले दिन सुनना भूल गए, देन अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम day 1 to 21, देन साइकिल शुड बी 21 डेज। ठीक है, तो आप लोग अग्री है क्या मैं रिलैक्सेशन थेरेपी दूं? Okay. I just want to know one thing, Mia. What would be the duration of this therapy process? Therapy means relaxation. It would be relaxation, ma'am. जैसे I mean the duration. I understood that. I just duration, want to, time yes. time duration. Yes, yes. 7 minutes. Okay, okay. Let's continue. Okay. Just a minute. मैं अपना YouTube में एक बार म्यूजिक चला लूँ, ठीक है? Meanwhile, we can stop the presentation. Is it audible? Music audible है? Yes, ma'am. Okay. तो आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए। अपना अगर बाहर शोर है तो अपना फोन म्यूट कर लीजिए ताकि जो शोर है वो रिकॉर्ड ना हो जाए।
स्टार्ट कर रही हूँ मैं. अगर आप लोग इंस्टेंट अभी भी लेना चाहते हैं थेरेपी, तो मैं जो प्रोसेस बोलूँगी आप चेयर में बैठे बैठे उसे फॉलो कीजिए. Close your eyes. Take 7 deep breaths. In and out. Take 7 deep breaths. In and out. And as you breathe in, you are feeling the joy, positivity, comfortness, relaxation goes into your mind and body. And as you breathe out, you are feeling the joy, negativity, discomfortness, anxiety goes out from your mind and body. And your whole mind and body become relaxed, relaxed, even deep, deep, relaxed. Your whole mind and body become relaxed, relaxed, even deep, deep, relaxed. Bring your all focus and awareness on your both feet. Your both feet become relaxed, relaxed, even deep, deep, relaxed. And this relaxation goes onto your both knees, both thighs, your stomach, your chest, your heart, and your both knees, both thighs, your stomach, your chest, your heart become relaxed, relaxed, even deep, deep, relaxed. And this relaxation goes onto your both shoulders, both arms, both elbows, both wrists, 10 fingers, both palms, and your both shoulders, both arms, both elbows, both wrists, 10 fingers, both palms, become relaxed, relaxed, even deep, deep, relaxed. And this relaxation goes onto your whole back knee, back head, upper head, forehead, both eyebrows, both eyes, your nose, your lips, your chin, your cheeks, your neck, and your whole back knee, back head, upper head, forehead, both eyebrows, whole face, neck, become relaxed, relaxed, even deep, deep, relaxed. And this relaxation goes onto your whole
back muscles, your waist, your buttocks, your back thighs, your calves, your heels, and your whole back muscles, your waist, your buttocks, your back thighs, your calves, your heels become relaxed, relaxed, even deep, deep, relax. Your whole mind and body become lighter and lighter, lighter and lighter, light as a feather, and you are going into deep, deep trance as your mind and body become lighter as a feather. You are flying higher on the sky. You are flying higher on the sky. You can see silvery white cloud, grey clouds, sky blue clouds around you, which makes your mind more and more relaxed. You can feel the touch of pretty cloud. It could be hot, pretty cloud, or it could be cool, pretty cloud, which makes your mind more and more relaxed. And after flying and flying on the sky, you can hear the sound of strong winds, which makes your mind more and more relaxed. And after flying and flying on the sky, you are reaching the place where you can see 21 stairs. You are standing down in front of 21 stairs. I will count 20 to 0. In each and every counting, you will have to take deep, deep breath. And as you will step up, you will go into deep, deep trance. And in each and every counting, you will have to take deep, deep breath. When I will count 20, you will have to put your left leg first. Now I am going to count 20. Put your left leg first. Take a deep, deep breath. 19. Take a deep, deep breath. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.
1 0। आप अपने आप को कॉरिडोर के सामने इमेजिन कर पा रहे हैं और धीरे धीरे कॉरिडोर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे आपको एक डोर दिखाई देगा। उस डोर के हैंडल को या नॉब को पकड़कर आप रूम में स्टेप इन कर रहे हैं। रूम का दरवाजा आपने बंद कर दिया। उस रूम में एक रिलैक्सेबल बेड है। उस रिलैक्सेबल बेड पे आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं। पिलो पे सर रखकर आप सो जा रहे हैं और आपकी बॉडी के ठीक ऊपर सीलिंग से एक वाइट ब्राइट लाइट आपके पूरे माइंड में, बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल में, नर्व में स्प्रेड होती जा रही है और आपके पूरे माइंड से, बॉडी से, ईच एंड एवरी सेल से, नर्व से वो सारी नेगेटिविटी, डिस्कम्फर्टनेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट सब करके यूनिवर्स में सेंड कर रही है। अपने पूरे माइंड से, बॉडी से, ईच एंड एवरी सेल से, नर्व से वो सारी नेगेटिविटी, डिस्कम्फर्टनेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स जाते हुए फील कीजिए। वाइट लाइट को थैंक्स बोलिए। धीरे धीरे वाइट लाइट वैनिश हो जाती है और बदले में और बिग वाइट ब्राइट लाइट आपके पूरे माइंड में, बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल में, नर्व में स्प्रेड होती जा रही है और आपके पूरे माइंड में, बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल में, नर्व में वो सारी पॉजिटिविटी, कंफर्टनेस, रिलैक्सेशन स्प्रेड कर रही है। उसे फील कीजिए। वाइट लाइट को थैंक्स बोलिए। धीरे धीरे वाइट लाइट वैनिश हो जाती है और आप डीप स्लीप में, रियलिटी में अपने माइंड को जो भी पॉजिटिव कमांड देना है वो दीजिए। उसे विजुअलाइज कीजिए। मैं 2 मिनट्स चुप रहूँगी। जब हो जाएगा आप मुझे बता दीजिएगा। Thank you so much, ma'am. I'm sure your thoughts and views will help all of us in every possible way. Now, I would like to open the platform for questions. Please, anyone
If you have questions, please do type them in the chat box and ma'am will answer to them. Yes, anyone? Any questions, please? I think post the relaxation session, everyone's mind is quite relaxed and there seems to be no questions right now. So in fact, some students are especially writing a thank you for the session. Thank you, ma'am. Ms. Munia, this is really lovely to have you today. I'm sure whatever you brought today to the platform must have given insight to all of us. Very small things like you mentioned, monitoring. Yes, please ask the question. There's one question over here. Yeah, please, Niharika. Niharika, will you be typing your question? Okay, so the question is, how can we help someone who's anxious about COVID? वो जो कि मैंने बताया था निहारिका कि हम लोग अपने माइंड को कमांड कर देते हैं कि कोविड एक डेडली डिजीज है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे डेथ हो गया, मेरी मेरी डेथ हो गई तो क्या होगा, मेरे घर वालों को कौन देखेगा। माइंड हमारा बोलता है जो हुक्म मेरे आका, और उसे वो फील कराने लग जाता है, उससे एंशियस फील कराने लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ चैनल कम देखेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे और अपने आप में कमांड करेंगे अपने माइंड को कि मैं हेल्दी हूँ। बहुत सारे डिजीज हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, डेडली डिजीज बहुत सारे हैं, पर हम लोग उसके साथ चलते हैं प्रिकॉशन के साथ। बहुत सारे कैंसर हैं, डायरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें पता है कि इन सारी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, शायद हमें एडमिट होना पड़े, डेथ हो जाए, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर हम लोग उसके साथ चलते हैं ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि नहीं, मुझे प्रिकॉशन लेते हुए आगे बढ़ना है ना। लेकिन कोविड के टाइम में हम लोग इसे एक नेगेटिव कमांड दे दिए अपने माइंड को कि नहीं, कोविड के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, कोविड हुआ मतलब डेथ हो गई। तो उसे इस थॉट को हमें हटाना होगा, चेंज करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिस कोविड होता है और वो घर में ही ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते हैं। तो अपने थॉट को, अपने आप को ये सोच के स्ट्रॉन्ग करना होगा कि सबसे पहले जब भी मुझे अगर फीवर हुआ या कुछ सिम्टम्स आए तो मैं, बहुत लोग होते हैं कि नहीं मुझे टेस्ट कराने में डर लग रहा है क्योंकि रियलिटी को मैं फेस नहीं करना चाहता या फेस नहीं करना चाहती, कोविड हो गया तो क्या होगा। तो इस डर से वो उस फीवर को, उस प्रॉब्लम को रोक के रखते हैं, डॉक्टर नहीं दिखाते हैं, या डॉक्टर दिखाते भी हैं तो टेस्ट नहीं कराना चाहते क्योंकि रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के द मोमेंट आपको सिम्टम लगे आप डॉक्टर दिखाइए, टेस्ट कीजिए और इनिशियल स्टेज से ही ट्रीटमेंट के साथ चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोगों को पता है कि हैंड वॉश करने के बाद ही खाना खाना होता है, अदरवाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो हम लोग उसे फॉलो करते हैं लेकिन उसके साथ चलते हैं। यहाँ पे भी कोविड के प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा, इनिशियल टाइम ही टेस्ट करा के मेडिसिन लेके चलना होगा, कुछ भी वर्स्ट नहीं होगा। बहुत सारे डेडली डिजीज हैं जो कि हम लोग उसके साथ चलते हैं और वो ठीक भी हो जाता है, या उससे डेथ, ज़रूरी नहीं है कि उससे डेथ ही हो रही है, रिकवर भी कर रहे हैं लोग, क्योर्ड भी हो रहा है।
तो ये भी वैसा ही एक डिजीज है, बट इनिशियली ये पहले पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके कारण हमारा माइंड एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन ले लिया. Okay, Hello. ma'am. So there is one more question. Anushka is asking that in morning, if the mind is full of stressful thoughts, what should one do? जो मैं रिकॉर्डिंग दी हूँ या मैं पहले भी बोली थी कि ये मैजिक नहीं है कि इनिशियली चुटकी के साथ हम जो सोचेंगे वो होने लगेगा, या मेडिसिन ले लेंगे बॉडी में डिसॉल्व होके वो कराने लग जाएगा. माइंड है वो कमांड पे चलता है, हम जो कमांड देंगे वही फॉलो होगा. एंड ट्रस्ट मी ये होता है. मैं कभी कभी अपने माइंड को एक्चुअल में कमांड करती हूँ. मैं देखती हूँ कि रोज मैं एक चीज़ भूल जा रही हूँ, तो मैं अपने माइंड को कमांड करती हूँ कि प्लीज़ ये होने के पहले मुझे ये याद दिला देना, और माइंड रियली हमें याद दिलाता है. तो अगर आप मॉर्निंग में आपने अपने माइंड को फीड कर दिया है, कमांड दे दिया है कि मॉर्निंग होगा और मुझे एंजाइटी होगी, तो आपको रात को सोने के पहले अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड देना होगा कि मॉर्निंग मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मैं बहुत रिलैक्सेबली मेरा पूरा काम कर रही हूँ, मैं बहुत काम हूँ, हैप्पी हूँ. रात को ये कमांड देकर उसे विजुअलाइज करते हुए सोना है और मॉर्निंग में उसे फील करते हुए उठना है. लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा. यू हैव टू गिव टाइम टू योर माइंड एंड बॉडी. एटलीस्ट 15 डेज के बाद में आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे. एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चंस? Thank you so much, Munia. I think you've given a very nice, trick to us. Like you said, it's not magic, but it's a trick that we need to follow. That is, train our mind over a period of 21 days and practice and feel good for our own selves. I think, like you said, we all are responsible for our own mental health. So please make sure you give your mind a positive feed, stay healthy and stay safe amidst the COVID. Thank you so much, Munia, for giving us your time. I know you were very time pressed with patients coming in constantly, engaging with them. So thank you so much once again for your time. I'm sure we all had a lot of takeaway from today's session. We look forward. Like I said, I will just remind you all, these are Friday webinar sessions which we are initiating as part of the Connect Psychological Group support by SOHSS Psychology Group. So we look forward to have you all on next Friday. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you all. Bye. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.